Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad School's Sahiwal campus online lectures for our rising stars. And this lecture is for the stars of grade 4 for the subject of English. And in English subject, we are doing our unit number 15, report and flow charts. And this report is written by Hibba about a sugar museum. And this is the third lecture for unit number 15. Okay, in the previous lectures we covered reading, explanation and question answers from the unit number 15. In this lecture we are going to move forward towards the other sections, the language portion of exercise from this unit. So what are we going to do in this lecture? We will learn about paragraphs and we will learn about active and passive voice. Okay, please open your classwork notebook and prepare your index page. Write down serial number and date. The topic is paragraph. Before we begin, make sure that you have your English students book, your classwork notebook and your complete stationery available with you. Listen to the teacher attentively and write down all the things said by your teacher in your notebook or student's book or workbook, wherever your teacher says you. If you find anything difficult, you can rewind the video and listen to it again. And if you need to ask anything from your teacher, you can send a voice note mentioning your name, grade, subject and the lecture about which you are going to ask anything. Okay, this lecture is from students book, so please open your students book page number 88. Mark date and day on the top of this page and we are going to do language. Paragraphs. What is a paragraph? Dear students, a paragraph develops one main idea through a series of related sentences. Paragraph is a collection of sentences जिसमें कोई कंप्लीट स्टोरी नहीं होती, किसी भी बारे में कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ब्रीफली इन्फॉर्मेशन को कंपोज किया जाता है in some sentences, not in the form of a long story or long essay but in some sentences. इस तरह के जो रिटन टेक्स्ट होता है उसे हम कहते हैं पैराग्राफ, जिसमें सिर्फ किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में उसका मेन आइडिया डिस्क्राइब किया हुआ होता है. पैराग्राफ्स हेल्प राइटर टू ऑर्गेनाइज देयर मटेरियल. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर क्लास वर्क पेज. Prepare your classwork page by writing date and day. Topic is paragraphs. Please write down the definition of paragraphs on your classwork notebook. And the definition is: a paragraph develops one main idea through a series of related sentences. Paragraphs help writers to organize their material. Pause the video and write this down on your notebook. Okay. The first paragraph in a report is usually an introduction. जब भी आप कोई रिपोर्ट राइट करते हैं उसका जो सबसे पहला फर्स्ट वाला पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया होता है कि इस रिपोर्ट में होने क्या वाला है. ईच न्यू पैराग्राफ मेक्स अ न्यू आइडिया. जब आप अपना उस रिपोर्ट के बारे में, ऑफ कोर्स आपने उस किसी भी टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को वहाँ पे डिस्कस करना होता है. जैसे ही आप नया टॉपिक लेके उसी टॉपिक में नया आइडिया डिस्कस करने लगते हैं, आपका पैराग्राफ नेक्स्ट आ जाता है. हर नेक्स्ट पैराग्राफ एक और आइडिया लेके आता है. फॉर एग्जांपल, आपको जो एक पैराग्राफ है, अगर वो सपोज़ आप लिख रहे हैं, एक ऐसे लिख रहे हैं आप पाकिस्तान के बारे में, सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप हो सकता है उसके लैंड फीचर्स डिस्कस करें. आपका पूरा पैराग्राफ जो है वो लैंड फीचर्स पे होगा. फिर उसके बाद आप उसके कल्चर्स डिस्कस करेंगे, आपका थर्ड पैराग्राफ आ जाएगा, वो सारे का सारा उस कल्चर्स के बारे में होगा. उसमें कोई जो पिछले वाले टॉपिक की बातें डिस्कस नहीं होंगी. कल्चर वाले पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में आप वापस लैंड फीचर्स वाली बातें नहीं डिस्कस करेंगे. I hope you understood what I am going to tell you. Okay. On students book page number 88, question number 1 is: find the main idea in each paragraph of Hibba's report. Okay, this question is to be done on your book. You don't need to write it on your notebook.
मैच ईच ऑफ दीज हेडिंग्स टू वन ऑफ द पैराग्राफ। अच्छा, पहले हम देख लें कि हिबा की रिपोर्ट में क्या क्या था। उसकी रिपोर्ट में सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन था कि हम लास्ट मंडे विज़िट के लिए गए। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने म्यूज़ियम देखा जिसमें पिक्चर्स वगैरह थी, और पिक्चर्स किन किन की थी वो भी आपको याद होगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि जो पुरानी मिल्स होती थी उनमें पावर्स कौन कौन सी यूज़ होती थी, फिर कैसे कैसे एवोल्यूशन हुई और जो पावर का सिस्टम था वो चेंज हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने जहाँ पे प्रोडक्ट्स बन जाती हैं उन्होंने वहाँ विज़िट किया, उन्होंने केन सिरप को टेस्ट किया और उन्होंने देखा कि वो किस तरह जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं वो यूज़ होती हैं, या जो वेस्ट्स होते हैं वो कैसे यूज़ किया जा सकते हैं। और उसके बाद इन द एंड उन्होंने अपनी कंक्लूजन दी है कि मैंने इस से ये लर्न किया। ओके, अब आपने इन सब पैराग्राफ्स के जो मेन हेडिंग्स बनती हैं, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, आपने ये बताना है कि कौन से पैराग्राफ के लिए कौन सी हेडिंग सूटेबल है। सबसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन था, तो यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है आप उसके सामने लिख लेंगे 1। इंट्रोडक्शन के सामने आप लिख लेंगे 1। सेकंड में उन्होंने देखा कि पावर यूज़ होती थी, नहीं, सेकंड में उन्होंने देखा कि जो बॉइलिंग हाउसेस हैं वो कैसे कैसे काम करते थे। बॉइलिंग हाउस एग्जीबिशन, ये हो जाएगी 2। उसके बाद उन्होंने देखा कि शुगर मिल के अंदर वो गई और वहाँ पे जाके उन्होंने उसका प्रोसेस देखा, तो शुगर मिल्स हो जाएगा 3। उसके बाद उन्होंने देखा कि स्टीम पावर कैसे कैसे काम करती है, और उसके बाद स्टीम कैसे कैसे बनाई जा सकती है, तो स्टीम पावर के सामने आप लिख लेंगे 4। 5th पैराग्राफ में उन्होंने बाय प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा कि वेस्ट्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है और बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या होती हैं, तो बाय प्रोडक्ट्स के सामने आप लिख लेंगे 5। लास्ट पैराग्राफ जो था वो मॉडर्न फैक्ट्री का विज़िट था और उसके साथ कंक्लूजन थी, तो मॉडर्न फैक्ट्री विज़िट के सामने आप लिख लेंगे 6। हैव यू डन दिस ऑन योर बुक? गुड। Students book page number 88, question number 2, what is the main idea of this paragraph? Okay, and the paragraph is, at the time of independence in 1947 there were only 2 sugar factories in Pakistan. The output of these factories was not enough for meeting the needs of the country. Pakistan started to bring in sugar from other countries and huge money was spent on it. Pakistan wanted to produce more sugar. What is the main idea of this paragraph? The main idea of this paragraph is dear students, you will write down the solution of this question on your notebook. So please open your notebook and write down the question statement, which is, what is the main idea of this paragraph? Then you will write down the solution, which is, the main idea of this paragraph is, in the beginning Pakistan had to face trouble to meet their need of sugar. In the beginning Pakistan had to face trouble to make their need of sugar. Okay, now come to students book page number 89 to our next topic, which is active and passive. Dear students, to describe anything, any information, there are 2 ways of voices. First is active voice and the other is passive voice. What is an active voice? In the active voice, the subject performs the action expressed by the verb. But in the passive voice, subject receives the action expressed by the verb. जो active voice होता है
वो सब्जेक्ट के हवाले से होता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया, क्या एक्शन परफॉर्म किया, लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है वो ऑब्जेक्ट के हवाले से होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ. You will understand it when I will explain you further. The active sentences tells us what the subject does. The passive sentence tells us what happened to the object. What happened to the object. For example, active sentence is I eat an apple. ये सेंटेंस किसके बारे में है कि मैंने एक एप्पल खाया. इसमें मेन थिंग कौन है, मैं, एक्शन डूअर. आई ईट एन एप्पल. सपोज अगर इसमें एन एप्पल ना भी होता इस सेंटेंस में और हम लिखते आई ईट, तो ये भी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आई ईट एन एप्पल. लेकिन अगर इसमें आई ना होता तो क्या ये सेंटेंस बन सकता था, ईट एन एप्पल? नहीं, इसमें तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है. एक्टिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट स्टार्ट पे आता है और सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, और ये सेंटेंस हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया. और अगर इसी को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आ जाएगा और हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ. फॉर एग्जांपल हम कहेंगे एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी. सपोज ये पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम बाय मी को रिमूव कर देते हैं और सेंटेंस बन जाता है एन एप्पल इज़ ईटन. एन एप्पल इज़ ईटन, तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट है. यानी कि एक्टिव सेंटेंसेस जो हैं वो सब्जेक्ट के बगैर नहीं फॉर्म किए जा सकते और जो पैसिव सेंटेंसेस हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के बगैर फॉर्म नहीं किए जा सकते. कोई भी सेंटेंस एक्टिव नहीं हो सकता अगर उसमें सब्जेक्ट ना हो, और कोई सेंटेंस पैसिव नहीं हो सकता अगर उसमें ऑब्जेक्ट ना हो. देन व्हेन यू विल डू द एक्सरसाइजेस यू विल have a more clear idea about active and passive voices. The word by tells us what did the action. पैसिव सेंटेंसेस में क्योंकि सब्जेक्ट कंपल्सरी नहीं है, इसलिए बाय और सब्जेक्ट इनके बगैर भी पैसिव सेंटेंसेस फॉर्म हो जाते हैं. पैसिव फॉर्म्स आर मेड अप ऑफ वर्ब टू बी एंड पास्ट पार्टिसिपल. सारे पैसिव वॉइसेस, किसी भी टेंस का जो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल. और साथ में इनके कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब टू बी यूज़ होता है. इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, कोई ना कोई वर्ब टू बी ज़रूर यूज़ होता है. और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. वर्ब की हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है. हमें ये कैसे पता चलता है कि ये किस टेंस की बात है, ये प्रेजेंट की बात है, पास्ट की है या फ्यूचर की है, वो हमें कहाँ से पता चलता है, वो हमें वर्ब टू बी से पता चलता है. इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी और हैज़, हैव, एटसेट्रा. ओके, फ्रॉम पेज नंबर 89, द टॉपिक ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 1, which is which of these sentences are active, which are passive. Okay. This exercise will be done on your book. The cane is harvested. The cane is harvested. Okay, ये कौन सा सेंटेंस है? सबसे पहले हमने ये देखना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है. कोई एक्शन परफॉर्म करने वाला इस सेंटेंस में है. केन इज हार्वेस्टेड, केन को हार्वेस्ट किया जाता है. कौन करता है केन को हार्वेस्ट, ये यहाँ पे डिस्क्राइब किए नहीं किया. सेकेंडली इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, द केन. केन को हार्वेस्ट किया जा रहा है तो ऑब्जेक्ट केन है और वो यहाँ पे सेंटेंस के बिगिनिंग में आ गया है. और साथ में इसके इज यूज़ हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है. किसी भी एक्टिव सेंटेंस में इज, आर, एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होती. सो हमें पता चल गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस. सेंटेंस नंबर 2 इज द मैन हार्वेस्ट द केन. लोग केन को हार्वेस्ट करते हैं या आदमी केन को हार्वेस्ट करते हैं. ये वाला सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट स्टार्ट पे आ गया है कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मैन. और इसमें हार्वेस्ट वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ हुई है, पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ नहीं हुई है. इसका मतलब ये है कि ये कौन से वॉइस है, एक्टिव वॉइस. दे बॉयल द जूस. दे बॉयल द जूस. जूस कौन बॉयल कर रहा है, दे, सम पीपल. और इसमें वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ हुई है बॉयल, पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ नहीं हुई है. तो इसका मतलब क्या है, एक्टिव. You will write down active, passive in the front of these sentences. Sentence number 4 is the juice is boiled. The juice is boiled.
जूस को बॉयल किया जाता है। अब यहाँ पे वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हुई है, साथ में इज़ आ गया है और जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट पे आ गया है और हमें ये बताया जा रहा है कि जूस के साथ क्या होता है, जूस इज़ बॉइल्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये पैसिव वॉइस है। द म्यूजियम इज़ विजिटेड बाय मैनी पीपल एवरी डे। म्यूजियम की सैर की जाती है। द म्यूजियम इज़ विजिटेड बाय मैनी पीपल। अब यहाँ पे पार्टिसिपल फॉर्म है और साथ में इज़ है और ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे है और सब्जेक्ट जो वो एंड पे है विद बाय। इट मीन्स कि ये कौन सा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस। 6th वन इज आई विजिटेड द शुगर म्यूजियम लास्ट वीक। आई विजिटेड द शुगर म्यूजियम लास्ट वीक। यहाँ पार्टिसिपल के साथ कोई वर्ब टू बी यूज नहीं हुआ, सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट पे आ गया है। आई इज अ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज एट द बिगिनिंग, सो दिस इज एक्टिव वॉइस। Okay, this is the end of today's lecture. Now let's discuss our homework. Please open your homework diary, write down date, subject, and then note down your homework. And your today's homework is from workbook page number 58. You will do question number 1 and question number 2 on your workbook. Have you done diary? Good luck. This is the end of today's lesson. Allah Hafiz.